Hello dear students, today's topic is defects in solids. These defects are also called imperfections. Imperfection means which is not perfect. We know that in case of crystalline solids, there is a regular arrangement of the constituent particles. These constituent particles may be metal atoms in case of metallic solids, ions in case of ionic solids, molecules in case of molecular solids, and atoms in case of covalent solids. But in many cases, these arrangements are not found to be perfectly crystalline because constituent particles may deviate and may exist at any other positions as prescribed for them. As a result, the perfect regular arrangement of the constituent particles is sometimes not obtained. Any departure from perfectly ordered arrangement of the constituent particles in a crystal is known as imperfection or defect. It may be due to the missing of the particles or maybe dislocation of the particles. So missing and lacking of the atoms or ions in an ideal or imaginary crystal structure or lattice, and the misalignment of unit cells in rare crystals are called crystal defects or solids defects. ओवरऑल जो क्लासिफिकेशन है डिफेक्ट्स की, वी कैन ब्रॉडली क्लासीफाई these defects into two types. But first of all we must know what is a regular arrangement. तो आप यहाँ पे देख सकते हो in this region it is a perfect arrangement. यहाँ पे सारे के सारे particles एक regular way में arranged हैं. So this is a perfect way of arrangement of the constituent particles. So deviations की अगर बात करें तो दो types के defects हैं जो mainly solids में exist करते हैं. The first one is point defect. In order to understand point defects, let us consider this type of arrangement. You can see here some points are missing. Some lattice points are not occupied by the constituent particles. So these are known as point defects. Means when the deviation or irregularities exist from the ideal arrangement around a point or an atom in a crystalline substance, the defect is called point defect. In case of line defect, जो सेकेंड टाइप है, उसमें क्या है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनमें एक पूरी की पूरी रो और कॉलम में डेविएट फ्रॉम द रेगुलर अरेंजमेंट. मीन्स व्हेन द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट एग्जिस्ट इन एंटायर रो ऑफ द लेटेस्ट पॉइंट्स, द डिफेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट. तो आप यहाँ पे देख सकते हो as this is the perfect arrangement, but in this case there is one a row of the particles which is not aligned perfectly. So such type of defects are called line defects. So on broad classification we have two types of defects, point defects and line defects. Now we will discuss only about the point defects, what are their types, how they can be formed, और कौन कौन सी examples हैं जिसमें उस टाइप के पॉइंट डिफेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं. सो ओवरऑल दीज पॉइंट डिफेक्ट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. द फर्स्ट वन आर स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. नाउ व्हाट आर दीज स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स? These are those defects in which equal number of cations and anions. Cations are positively charged and anions are negatively charged. They are missing from the lattice sites. Means पूरे क्रिस्टल में से जितने कैटायन मिस होंगे उतने ही एनायन मिस होंगे. ठीक है. या फिर दूसरा वे क्या है, कैटायन और एनायन मिस नहीं हो रहे हैं बट दे आर ऑक्युपाइंग डिफरेंट पोजीशंस एज कंपेयर्ड टू द प्रिस्क्राइब्ड वन. मींस अगर पर्टिकुलर पॉइंट में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अगर कैटायन एग्जिस्ट होना चाहिए था, वो वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ना होके टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, बट है वही प्रेजेंट. ठीक है. तो उन जो डिफेक्ट्स हैं, दोज डिफेक्ट्स आर कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. इनकी डिटेल हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं इसी वीडियो के. और these defects do not disturb the stoichiometry. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है. वो कैसे? मान लो मेरे पास NaCl का क्रिस्टल है और एक क्रिस्टल में there are 20 Na पॉजिटिव आयंस एंड 20 Cl नेगेटिव आयंस. अगर दो आयन मिस हो भी जाएं, दो कैटायन मिस हो जाएं, दो अनायन मिस हो जाएं, स्टिल वी विल हैव अ रेशियो ऑफ 1:1. पहले भी क्या था, बिफोर डिफेक्ट्स भी क्या थी रेशियो, इट वाज 1:1. आफ्टर डिफेक्ट्स भी रेशियो क्या है, 1:1. सो फॉर्मूला विल नॉट चेंज.
दिस इज द मेन ब्यूटी ऑफ दिस डिफेक्ट मीन्स स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो फॉर्मूला विल नॉट बी चेंज, जो यूनिट फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। सच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक्स डिफेक्ट्स। थर्मोडायनेमिक्स क्यों कहते हैं? बिकॉज जनरली दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट्स। ओके, जो सेकेंड टाइप है हमारे पास डिफेक्ट्स की, दोज आर नोन एज नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। उनको क्या नाम देते हैं? नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो वो कौन से हैं? एज कंपेयर टू स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जैसे इनका नाम ही इंडिकेट कर रहा है, दे आर नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट मींस यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ओके, so the compound in which the number of positive means cations and negative ions means anion is not exactly the same as indicated by the chemical formula. A ratio should remain same, but यहाँ पे ratio same नहीं रहती है, that's why they are called non-stoichiometric defects. एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे भी साइड कर देता हूँ। लेट मेरे पास एक कैटायन है A और एनायन है B। एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ये पहले 4 और 4 प्रेजेंट है, बट ड्यू टू सम डिफेक्ट्स ये 3 ही रह गए, ये 4 के 4 ही रहे। तो जो अर्लियर रेशियो 1:1 थी, क्या सेम रेशियो अब आ पाएगी? नाउ द रेशियो इज 3:4। अब ये रेशियो सेम नहीं है। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा आफ्टर डिफेक्ट्स वो सेम नहीं होगा एज कंपेयर टू द अर्लियर वन विच वाज फॉर्म्ड ड्यू टू which was actually present in जो एक्चुअल कंडीशन थी, पोजीशन थी इनके कैटायंस और एनायंस की। मींस फॉर्मूला यहाँ पे चेंज कर जाएगा एज कंपेयर टू स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जहाँ पे फॉर्मूला चेंज नहीं कर रहा था। जो तीसरी टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं, दे आर कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इम्प्योरिटी एज द नेम इज इंडिकेटिंग, इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर में किसी का भी हो, मेटल्स हो सकती हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो सकते हैं, उनमें कुछ फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो फॉरेन एटम्स ये क्या करते हैं? दे जनरली रिप्लेस द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पोजीशन और दे ऑक्यूपाई दोज पोजीशन, मींस फॉरेन एटम्स और पार्टिकल्स। सच टाइप ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर केमिस्ट्री। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज into a crystalline solid is known as doping. This is very important. Generally पूछा what is doping? So doping is the introduction of foreign atoms or impurities into some ionic solids, metallic solids is known as, even metal oxides is known as doping. और ये doping बहुत important है, आजकल maximum research doped materials के ऊपर चल रही है। So they are जो doped materials हैं, they are used for making semiconductors which are used in electrical, optical and structural applications, जो इनकी properties के बेस पे डिफाइन की जाती हैं। सो अब सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या है, फिर नॉन स्टोकियोमेट्रिक स्टडी करेंगे, फिर इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, दे आर नोन एज स्कॉटके डिफेक्ट्स। स्कॉटके डिफेक्ट्स, सो इन डिफेक्ट्स में क्या है, मैं पहले आपको समझा रहा हूं। एक परफेक्ट सॉलिड मैंने यहाँ पे लिया है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस एंड दे आर ऑक्यूपाइंग परफेक्ट अरेंजमेंट्स। यू कैन सी हियर परफेक्ट अरेंजमेंट इज प्रेजेंट। ओके, कैटायंस आर सराउंडेड बाय एनायंस एंड एनायंस आर सराउंडेड बाय कैटायंस। बट व्हाट विल हैपन अगर यहाँ से कैटायन और एनायन इक्वल नंबर में मिस हो जाए? यू कैन सी हियर एक कैटायन फ्रॉम दिस पोजीशन ये कैटायन मिस हो जाएगा एंड फ्रॉम दिस पोजीशन एनायन मिस हो जाएगा। तो इक्वल नंबर में मिस हुए, ओवरऑल जितने कैटायन थे और जितने एनायन थे उनकी रेशो सेम रही, बट यहाँ पे फर्क क्या पड़ेगा? लैटिस पॉइंट्स कुछ खाली हो गए। जहां से कैटायन मिस होगा दोज आर कॉल्ड कैटायन वैकेंसीज, और जहां से एनायन मिस होगा दोज आर कॉल्ड एनायन वैकेंसीज। उनको नाम देंगे anion vacancies. So if in an ionic crystal of the type A, B, anything you can आप Na positive, Cl negative भी consider कर सकते हो, equal number of cations and anions are missing from their lattice sites so that overall electrical neutrality is maintained. They are known as Schottky defects. So ये आपको पहले बता दिया कहाँ कैटायन वैकेंसीज बनेगी, जहाँ से कैटायन मिस होगा, कहाँ एनायन वैकेंसी बनेगी, जहाँ से एनायन मिस होगा। अब कौन से कंपाउंड्स हैं जो इस तरह के स्कॉटकी डिफेक्ट शो करते हैं? कंडीशंस हैं। व्हाट आर दी कंडीशंस? एक आयनिक सॉलिड में क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वो स्कॉटकी डिफेक्ट शो कर पाए? सबसे पहला है कैटायन एंड एनायन
cation and anion should have almost same size. Almost same size means there should be very small difference in the size of cation and anion as the case for Na positive and Cl negative. दूसरा जो मेन पॉइंट है, the coordination number is should be high. Coordination number should be high. Coordination number high होना चाहिए. Now what was the coordination number? एक पर्टिकुलर स्फीयर के अराउंड कितने दूसरे टाइप के स्फीयर्स प्रेजेंट है. जैसे यहाँ पे कंसीडर करना हो तो एक कैटायन के अराउंड, कैटायन यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं, एक कैटायन के अराउंड कितने एनायंस प्रेजेंट हैं, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर. तो यहाँ पे क्योंकि कैटायन और एनायन का साइज सेम था, ऑलमोस्ट सेम था, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, हाई होगा. ओके, सो दो कंडीशंस है मेन स्कॉटकी डिफेक्ट्स के लिए. फर्स्ट इज कैटायन और एनायन के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. दे मे बी डिफरेंट इन साइज बट ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. दे शुड बी ऑलमोस्ट सेम. ठीक है. दूसरा, देयर कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी हाई. जैसे इस केस में कितना शो हो रहा है, वी आर हैविंग अप्रॉक्सीमेटली 6 कोऑर्डिनेशन नंबर. अब प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस आएंगी जो स्कॉटकी डिफेक्ट्स हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी चेंज आती है, प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी चेंजेस आएंगी. जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है क्योंकि पूरे लैटिस में से कैटायन और एनायन मिस हो चुके हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट एट द लैटिस साइड्स. ओवरऑल नो डाउट वॉल्यूम इज रिमेनिंग सेम, ओवरऑल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आई है, वो वही रहा है, बट इसमें से कुछ पोजीशंस ऑक्यूपाइड नहीं है. ये कुछ वैसे ही लेके चल सकते हैं हम, जैसे एक बस है, बस में फुल्ली सीटेड है, बट अगर 2 सवारियां उसमें से उतर जाएं तो क्या होगा, बस तो उतने साइज की ही रहेगी बट ओवरऑल मास में कमी आ जाएगी. तो यहाँ पे भी क्या होगा, बिकॉज वॉल्यूम रिमेन सेम और मास कम हो जाता है तो यहाँ पे डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी. तो सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर है यहाँ पे जो इफेक्ट पड़ेगा स्कॉटकी डिफेक्ट का, वो क्या है कि डेंसिटी विल डिक्रीज. डेंसिटी विल डिक्रीज. सबसे इंपॉर्टेंट यही है यहाँ पे कि डेंसिटी कम हो जाएगी. नाउ द सेकंड पॉइंट क्या है, कैटायन और एनायन वैकेंसीज बनने की वजह से जो दूसरे कैटायन है हो सकता है इन पोजीशंस को ऑक्यूपाई करने के लिए साइड से आ जाए. तो उससे क्या होगा, कैटायंस और एनायंस की मूवमेंट शुरू हो जाएगी. फॉर एग्जांपल ये वाला कैटायन यहाँ आ जाए, ये वाला एनायन ये पोजीशन ऑक्यूपाई कर ले, सो देयर इज मूवमेंट ऑफ आयंस. अगर मूवमेंट ऑफ आयंस हो जाएगी देन ऑब्वियस सी बात है देयर इज मोर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. तो जितने ज़्यादा ये स्कॉटकी डिफेक्ट्स होंगे, जो आयनिक सॉलिड वो उतना ही ज़्यादा कंडक्टिंग होता जाएगा. तो दिस इज द सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट की बात करते हैं. थर्ड पॉइंट पे ओवरऑल क्रिस्टल की स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी. और उसका रीजन क्या है, बिकॉज कैटायंस एंड एनायंस विल मूव टू अदर वेकेंट साइड्स, तो जो स्टेबिलिटी है दैट विल बी रिड्यूस्ड. सो थर्ड फैक्टर इज लो स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी इज reduced for Schottky defects. So conditions क्या है, कैटायन एनायन शुड बी ऑफ सेम साइज, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए, और प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो डेंसिटी क्या है, डिक्रीज कर जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी. सो दिस वाज द केस फॉर Schottky डिफेक्ट्स. जो सेकेंड कैटेगरी हमारे पास आती है दैट इज नोन एज फ्रैंकल डिफेक्ट्स. सो इन केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स कैटायन और एनायन कोई मिस नहीं कर रहा अपनी पोजिशंस को. आपको मैं एक स्टैंडर्ड क्रिस्टल यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यू कैन सी हियर एक स्टैंडर्ड क्रिस्टल है जिसमें कैटायन एनायंस बने हुए हैं. नाउ एक परफेक्ट अरेंजमेंट में चेंज क्या आएगी फ्रैंकल डिफेक्ट्स में, सी केयरफुली, यू कैन सी हियर नाउ द कैटायन जो उसका जो प्रिस्क्राइब्ड स्पेस था, जो उसकी लैटिस साइड थी, वो वहां प्रेजेंट नहीं होगा. दैट विल ऑक्यूपाई सम नियर बाई वाइड और इंटरस्टिशियल साइड. एक ये मिस कर गया, एक जैसे ये इस तरफ को आ जाएगा. तो कैटायंस आर प्रेजेंट ऑलरेडी देयर, बट एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, दे आर ऑक्यूपाइंग सम अदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. ये जो वेकेंट स्पेसेस हैं, दीज वेकेंट स्पेसेस आर कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स. कोई भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ज्योमेट्री कैसी है वॉइड्स, और दे आर आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल साइड्स. सो कैटायंस कहाँ प्रेजेंट होंगे, कैटायंस आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइड्स एज कंपेयर टू जो उनके एक्चुअल में पोजीशंस उनको ऑक्यूपाई करनी थी, वहां प्रेजेंट वो नहीं होंगे. तो इन फ्रैंकल डिफेक्ट से चेंज क्या आएगा, सबसे पहले कंडीशंस की बात कर लेते हैं. तो कंडीशंस क्या है, कौन कौन से सॉलिड्स हैं, कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए सॉलिड्स में, खास करके आयनिक सॉलिड्स में, जिनमें ये फ्रैंकल डिफेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं. तो पहला आप यहाँ पे देख सकते हो कैटायन छोटे साइज का है. अगर स्कॉटकी डिफेक्ट की बात करें, वहाँ कैटायन एनायन दोनों ऑलमोस्ट सेम साइज के बनाए थे,
बट फ्रैंकल डिफेक्ट्स में कैटायन छोटे साइज का बनाया, और ये मेन कंडीशन है, साइज ऑफ कैटायन शुड बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ एनायन, स्मॉलर देन द साइज ऑफ एनायन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो पॉइंट है कि अगर साइज छोटा है कैटायन का, बहुत छोटा है, तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के पे क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो, अगर छोटे साइज का कैटायन होगा तो उसके अराउंड एनायन भी कम ही होंगे। जैसे पिछले केस में यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था स्कॉट की का, यहाँ था 6 था, यहाँ कितना कोऑर्डिनेशन नंबर शो हो रहा है, 4 शो हो रहा है, क्योंकि कैटायन छोटा है तो उसके अराउंड कम ही स्फीयर ऑक्यूपाई करेंगे पोजीशंस को, और कैटायन उसके बीच में आ जाएगा। जब कैटायन बड़े साइज का था तो ज़्यादा स्फीयर उसके अराउंड अरेंज करने पड़ेंगे, मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर स्कॉट की में हाई था, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर लो है, कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी लो। तो जो ऐसे जो आपके पास सॉलिड्स होंगे, उन सॉलिड्स में, आयनिक सॉलिड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, सो दैट कि वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो कर पाए। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी लो। सो ये दो कंडीशंस थी कि कौन से सॉलिड्स स्कॉट की और कौन से सॉलिड्स फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेंगे। अब प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, व्हाट आर दी मेन प्रॉपर्टीज इनकी, पहली प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, डेंसिटी पे यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रही है। रीजन इज ऑब्वियस, कैटायंस आर ऑलरेडी प्रेजेंट, पहले भी वहीं थे, अब भी क्रिस्टल में ही है, बट दे आर प्रेजेंट इन सम अदर साइड्स, ठीक है। सो नो चेंज इन डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगी। नो, व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पे भी बढ़ जाएगी। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है, कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। और थर्ड जो है, स्टेबिलिटी इज रिड्यूस्ड, अनस्टेबल हो जाएगा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ पे भी सेम वैसे, जहां से कैटायन मिस हो गया, दोज लैटिस पॉइंट्स आर कॉल्ड कैटायन वैकेंसीज, दे आर नोन एज कैटायन वैकेंसीज। तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट्स के एग्जांपल्स थे, फ्रैंकल डिफेक्ट्स की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है। अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जो स्कॉट के डिफेक्ट्स हैं वो कौन कौन से सॉलिड्स हैं जो ये डिफेक्ट शो करेंगे। वी हैव NaCl, KCl, KBr, AgBr, तो इन सॉलिड्स में स्कॉट के डिफेक्ट्स होंगे। जहां तक फ्रैंकल डिफेक्ट्स की बात करें तो उसमें कौन कौन से होंगे, वी हैव AgCl, AgBr, जिंक सल्फाइड, इवन AgI एटसेट्रा। एक एग्जांपल दोनों तरफ आ रही है, वो है AgBr की। AgBr में स्कॉट के डिफेक्ट्स भी आ रहे हैं और फ्रैंकल डिफेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, जो मेन कंडीशन आपको स्कॉट की बताई है उसमें क्या था कि कैटायन का साइज और एनायन का साइज सेम होना चाहिए। फ्रैंकल में मेन कंडीशन क्या बताई कि कैटायन बहुत छोटे साइज का होना चाहिए। तो जो AgBr है, यहाँ पर साइज ना तो ज़्यादा डिफरेंट है, ना ही एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज है, मतलब ना साइज Ag पॉजिटिव का Br से बहुत छोटा है ना बड़ा, मॉडरेट साइज है यहाँ पे। तो अब स्कॉट के डिफेक्ट बनेंगे या फ्रैंकल डिफेक्ट बनेंगे, दैट इज डिसाइडेड बाय द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्कॉट के डिफेक्ट बन जाएंगे, अगर टेम्परेचर लो होगा तो फ्रैंकल डिफेक्ट्स बन जाएंगे। वन मोर थिंग, फ्रैंकल डिफेक्ट्स में मूव सिर्फ कैटायन ही क्यों किए, एनायन क्यों नहीं किए, बिकॉज एनायंस आर लार्जर इन साइज, एनायंस फ्रेमवर्क बना रहे हैं, कैटायन छोटे साइज के हैं, दैट्स व्हाई कैटायन विल ऑक्यूपाई द लैटिस साइड्स, और वही मूव कर सकते हैं जो छोटे साइज के हों, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बड़े इजीली मूव कर जाएंगे। ओके, सो ये था मेन आपके पास स्कॉट के और फ्रैंकल डिफेक्ट्स के बारे में। मींस दीज वर द टाइप्स ऑफ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, जहां पे फॉर्मूला में चेंज नहीं आए। ओके, फॉर्मूला विल रिमेन सेम, डिफेक्ट से पहले भी और डिफेक्ट से बाद में। मींस कैटायंस और एनायंस के जो नंबर की रेशियो है दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। जो नेक्स्ट टाइप के वॉइड्स हैं दे आर नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉट वॉइड्स टाइप, जो डिफेक्ट्स हैं दे आर नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ये भी आगे दो तरह के हैं, एक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स एज द नेम इज इंडिकेटिंग, यहाँ पर मेटल एक्सेस में कैटायंस ज़्यादा होंगे, क्योंकि जनरली मेटल जो है वो कैटायन ही बनाएगी, एनायन कम होंगे, ठीक है। कैटायंस का नंबर ज़्यादा होगा और एनायंस का नंबर कम होगा। ओके, तो वहाँ पे मेटल एक्सेस हम इनको लिखेंगे। अब दो तरीके हैं जिनसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स हो सकते हैं। पहला क्या, या तो एनायन मिस हो जाए, एनायन अपनी जगह छोड़ के चला जाए, तो कैटायन जितने थे उतने रहेंगे, एनायन कम हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली मेटल मींस कैटायंस बढ़ जाएंगे। तो एक परफेक्ट अरेंजमेंट आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, सी केयरफुली।
एक परफेक्ट अरेंजमेंट है, कैटायंस एंड एनायंस आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर वे। नाउ व्हाट हैपेंस, सम एनायंस आर मिसिंग, देख सकते हो फ्रॉम दिस पोजीशन एंड फ्रॉम दिस पोजीशन एनायंस आर मिसिंग। तो नाउ व्हाट हैपेंस, कैटायंस का नंबर बढ़ गया, एनायंस का नंबर कम हो गया, तो ऑब्वियसली स्टोइकियोमेट्री विल चेंज, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। सो ये है ड्यू टू एनायन वैकेंसीज। अब अगर एग्जांपल्स की बात करें तो वो एग्जांपल्स कौन कौन से जो सॉलिड्स हैं इस तरह के डिफेक्ट शो करते हैं। सबसे जो कॉमन सॉलिड है वो है NaCl, वो है लिथियम क्लोराइड, वो है KCl, पोटेशियम के सॉल्ट्स, अल्कली मेटल्स के सॉल्ट्स में ये डिफेक्ट्स शो होते हैं जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हैं। और ये होंगे भी कब, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्लेम टेस्ट करते हैं हम, वहाँ देखते हैं कि जब NaCl के क्रिस्टल को हीट करते हैं इट लुक्स गोल्डन येलो कलर। ओके, KCl वाले को हीट करें उसका कुछ और कलर आएगा, लिथियम क्लोराइड को हीट करें उसका कुछ और कलर आएगा, लिथियम क्लोराइड का पिंक कलर आता है, पोटेशियम क्लोराइड का वायलेट कलर हमें शो होता है जब इनको हम हीट करते हैं फ्लेम में। बट अगर मैं पर्टिकुलरली इनको हीट करूं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स, सोडियम क्लोराइड को हीट करूं सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में, सो मान लो ये सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स थे, आयंस थे, पॉजिटिव इज रिप्रेजेंटिंग सोडियम आयंस, नेगेटिव Cl, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट हुई पड़ी है। जब मैं इसके ऊपर से सोडियम वेपर्स पास करूंगा, मैंने क्या किया, सोडियम वेपर्स को पास किया और इसको हीट किया, सोडियम गैसियस स्टेट में है, हीट किया, तो व्हाट विल हैपन, Na पॉजिटिव बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन्स विल बी फॉर्म्ड। तो नाउ व्हाट विल हैपन, इन सोडियम आयन से मिलने के लिए, इनसे रिएक्ट करने के लिए अंदर से एनायन बाहर रश करेंगे। तो यहाँ जो क्लोराइड आयंस थे वो कहाँ जाएंगे, वो इन Na पॉजिटिव आयन से मिलने के लिए यहाँ पे क्रिस्टल के साथ ये ग्रो करेंगे। मान लो यहाँ पे Na पॉजिटिव आयन आ जाता है तो यहाँ से जो Cl है वो यहाँ चला जाएगा और Cl इसके साथ जुड़ जाएगा। यहाँ जो क्रिएट हो रही है दैट इज कॉल्ड एनायन वैकेंसी, दैट इज कॉल्ड एनायन वैकेंसी। ओके, और इन एनायन वैकेंसीज में प्रेजेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है कहाँ से, जब सोडियम की यहाँ पे आयोनाइजेशन हो रही है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इन पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लेगा। एंड दोज पोजीशंस विच आर ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स, पोजीशंस भी क्या है, जो एनायन वैकेंसीज है पर्टिकुलरली, यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो जाएगा, वी विल हैव इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हियर। सो एनायन वैकेंसीज occupied by electrons are called F centers, are called F centers, and F stands for Farbe, F stands for Farbe, F-A-R-B-E, Farbe means color. So these electrons they are responsible for the color of the crystal, कौन से, जो एनायन वैकेंसीज में प्रेजेंट है। एंड सच एनायन वैकेंसीज विच आर ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज एफ सेंटर्स। इलेक्ट्रॉन्स होने जरूरी है बिकॉज एक बेसिक सी कंडीशन है, हमें ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। और ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कहाँ से, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम सोडियम वेपर्स। तो इसी तरह से अगर मैं लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल के ऊपर से लिथियम के वेपर्स पास करूं, यहाँ भी एफ सेंटर्स बनेंगे। अब क्योंकि हर एक की जो एनर्जीज है वो अलग अलग है तो यहाँ पे जो कलर आएगा वो पिंक कलर आएगा। KCl के ऊपर से जब पोटेशियम आयंस के, पोटेशियम के वेपर्स पास करेंगे सो दिस विल लुक लाइक वायलेट, ठीक है। सो अलग अलग कलर आते हैं अलग अलग क्रिस्टल्स के लिए। सो इन दिस सेक्शन व्हाट आर एफ सेंटर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो थे ये फर्स्ट टाइप के हमने स्टडी किए, कैटेगरी ए पढ़ी जहाँ पे एनायन वैकेंसीज बन रही थी। जो दूसरी टाइप आती है हमारे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स में, दैट इज बाई एक्स्ट्रा कैटायन इन द वॉइड्स। वॉइड्स मीन्स इंटरस्टिशियल साइड, कैटायन ही एक्स्ट्रा हो जाएगा। देखो हमारा मेन पर्पस है मेटल ज्यादा होनी चाहिए। सो मेटल ज्यादा कैसे हो सकती है, या तो एनायन कम कर दो और add some extra cations in the interstitial voids. So I will show you perfect geometry. उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि एक्स्ट्रा कैटायन कैसे आएंगे और ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कैसे होगी। तो ये एक परफेक्ट अरेंजमेंट है। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ये आगे एक्स्ट्रा कैटायन आ गया। इस कैटायन की वजह से इस पूरे क्रिस्टल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए व्हाट वी नीड सम नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, और वो क्या है इलेक्ट्रॉन्स। सो जितने पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा प्रेजेंट होंगे उतने ही क्या आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, बिकॉज ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वी हैव टू मेंटेन। इस तरह के क्रिस्टल की जो बेस्ट एग्जांपल है वो है जिंक ऑक्साइड।
Zinc oxide when heated looks yellow colored. And why so? Actually जब जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं हम, what happens? जिंक 2 पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे, O2 रिलीज हो जाएगी फॉर बैलेंसिंग हाफ, और साथ में ये रिलीज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो जिंक आयंस बने हैं, दे विल ऑक्यूपाई द एक्स्ट्रा साइड्स, दे विल ऑक्यूपाई एक्स्ट्रा वॉइड्स. जैसे यहाँ पे आपको दिखाया, ये जो कैटायन है, इट इज ऑक्यूपाइंग एक्स्ट्रा वॉइड्स. अब क्योंकि जिंक 2 पॉजिटिव आयन, इट हैज 2 पॉजिटिव चार्ज, तो वी नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स टू न्यूट्रलाइज दिस चार्ज. तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, दे विल ऑक्यूपाई सम नियर बाई इंटरस्टिशियल साइड्स. तो ओवरऑल न्यूट्रलिटी भी आ गई, और यही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द क्रिस्टल, बट दे आर नॉट एफ सेंटर्स. दे आर नॉट एफ सेंटर्स. एफ सेंटर्स क्या थे? एनायन वैकेंसी, जो पिछले केस में हमने स्टडी किया, जहां एनायन वैकेंसीज बनी थी, उन एनायन वैकेंसीज में जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त, यहाँ कोई एनायन या कैटायन वैकेंसी नहीं बनी है. इलेक्ट्रॉन्स भी वॉइड्स में प्रेजेंट हैं, और जो एक्स्ट्रा कैटायन है वो भी वॉइड में प्रेजेंट है. तो ओवरऑल यहाँ पे कैटायंस का नंबर बढ़ गया, मींस मेटल का नंबर बढ़ गया, एनायन का नंबर उतना ही रहा. सो यहाँ पे आपको एग्जांपल भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है. ओके, सो ये थे हमारे पास सेकंड कैटेगरी, सेकंड टाइप ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, मींस एक्स्ट्रा कैटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइट्स. जो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, वो है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स. अब मेटल डेफिशिएंसी के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो मेटल कम हो जाए या एनायन ज्यादा हो जाए. इसका अपोजिट हो गया. जैसे यहाँ पे था एनायन वैकेंसीज, यहाँ क्या हो जाएगा? कैटायन वैकेंसीज. देखो यहाँ एक ही कैटेगरी है, बाई कैटायन वैकेंसीज, बाई कैटायन वैकेंसीज. ओनली वन टाइप. दूसरी क्यों नहीं होगी वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे. ओनली वन टाइप इज प्रेजेंट, कैटायन वैकेंसीज. सो एक परफेक्ट अरेंजमेंट आपके सामने शो हो रही है. यू कैन सी हियर, नाउ दिस कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम दिस पोजीशन. सी हियर, ये जो कैटायन है, ये कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम दिस पोजीशन. सो कैटायन का जो नंबर है वो अब कम है एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ एनायंस. ओके, बट इससे हुआ क्या? इससे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, बट पॉजिटिव चार्ज कम हो गया. तो इस पॉजिटिव चार्ज को एडजस्ट करना है कहीं ना कहीं पे, वी हैव टू एडजस्ट दैट पॉजिटिव चार्ज. सो टू डू दैट, जो कैटायंस है किसी दूसरी वेकेंट साइड पे, दैट इज ऑक्सीडाइज टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, सो यहां पे आप देख सकते हो, आई एम रिपीटिंग होल ऑफ द प्रोसेस. सी हियर, यस. सो कैटायन मिस हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, और यहाँ पे अब क्या होगा? एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा. यू कैन सी हियर, अब ये 2 पॉजिटिव. ओवरऑल चार्ज इज नॉन न्यूट्रल. इट मींस ये डिफेक्ट्स सिर्फ वहीं हो सकते हैं जहां पर मेटल हैज द टेंडेंसी टू शो, टू एग्जिबिट मोर देन वन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट. और ऐसी मेटल्स सिर्फ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू नो दैट कॉपर 1 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव, निकल 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव. ठीक है. सो ऐसी मेटल्स जहां पर एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स फिजिबल हैं, आयरन भी है 2 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव. तो ऐसे जो सॉलिड्स होंगे उनमें इस तरह के डिफेक्ट्स जनरेट होते हैं, जहां पर मेटल का जो नंबर है, जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो एक से ज्यादा हो सकती हैं, और वो भी स्टेबल. सो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपके पास, आई विल राइट हियर, जैसे आपके पास ही आ गया निकल ऑक्साइड. तो ऑक्सीजन तो 1 है, बट रेशियो के हिसाब से निकल कितना आ जाता है? 0.98. आयरन ऑक्साइड है, FeO, फेरस ऑक्साइड है, अगर ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ पे ये 1 नहीं आएगा, दिस विल बी 0.94 और समथिंग एल्स. सो दीज आर द डिफेक्ट्स. पहले क्या था? बिफोर डिफेक्ट्स ये 1 रेशियो वाज सेम, बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डिफेक्ट्स जो रेशियो थी वो सेम नहीं रही. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. और ये कैसे बने? ड्यू टू कैटायन वैकेंसीज, और कैटायंस क्योंकि कम है तो दे आर नोन एज मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स. नाउ द मेन पॉइंट जो सेकंड है इसमें, वो मैं आपको बता रहा हूँ. यहाँ पे जो सेकंड पॉसिबिलिटी थी वो क्या हो सकती थी? जैसे यहाँ था एक्स्ट्रा कैटायन, यहाँ क्या होगा? बाई एक्स्ट्रा एनायन, बट द प्रॉब्लम इज, हम शुरू से स्टडी करते आ रहे हैं, आप पिछले वीडियोस में चेक कर सकते हो इसी चैप्टर के. एनायंस आर ऑलवेज लार्जर इन साइज, वो जनरली फ्रेमवर्क बनाते हैं, एंड लार्ज साइज एनायन कांट ऑक्यूपाई द स्मॉल इंटरस्टिशियल साइट्स और वॉइड्स. सो दिस फिजिबिलिटी इज एक्सक्लूडेड.
इज वेरी लेस पॉसिबल और वेरी रेयर। सो जो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट है उसके लिए सिर्फ एक कैटेगरी स्टडी करेंगे, वो कौन सी है भाई? कैटायन वैकेंसीज। एनायन, एक्स्ट्रा एनायन कांट बी प्रेजेंट एंड व्हाई सो? बिकॉज anions are larger in size and they can't occupy small sized voids or interstitial sites। तो ये जो थी ये सेकंड कैटेगरी थी, दे आर नोन एज नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। जो थर्ड केस आता है वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। नाउ दिस सेक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स का। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स आयनिक सॉलिड्स में भी हो सकते हैं और वो कोवलेंट सॉलिड्स में भी हो सकते हैं। सो अगर आयनिक सॉलिड्स की बात करें, मैं NaCl का क्रिस्टल आपके सामने ये शो कर रहा हूँ। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। यू कैन सी अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्ट पार्टिकल। ईच Cl नेगेटिव आयन इज सराउंडेड बाय Na पॉजिटिव आयन, ईच Na पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय Cl नेगेटिव आयंस। नाउ आयनिक सॉलिड्स में इंप्योरिटीज आती कैसे हैं, कैसे हम इंप्योरिटीज ऐड कर सकते हैं? नाउ लिसन, आई विल मेल्ट NaCl क्रिस्टल, उसमें एक कैलकुलेटेड वे में कैलकुलेटेड वेट किसी दूसरे सॉलिड का डालूंगा जिसमें क्लोराइड आयन तो प्रेजेंट हो बट कैटायन कोई और। ओके, एग्जांपल, मैंने NaCl का क्रिस्टल लिया, NaCl का सॉलिड लिया, उसको मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने के बाद क्या किया, इसमें एक कैलकुलेटेड वेट में स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड कर दिया। स्ट्रोंशियम क्लोराइड में ओब्वियसली क्लोराइड तो दोनों में प्रेजेंट है, यहाँ भी क्लोराइड है, यहाँ भी क्लोराइड है, बट वी हैव Na पॉजिटिव हियर एंड स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आयंस हियर। मीन्स एक सोडियम के ऊपर क्या है? 1 पॉजिटिव चार्ज, एक स्ट्रोंशियम के ऊपर कितना है? 2 पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स अगर मुझे एक स्ट्रोंशियम का आयन ऐड करना है, आई हैव टू रिमूव 2 Na पॉजिटिव आयन। सी हियर, सो ये दो एडजेसेंट पोजीशन से Na पॉजिटिव आयन रिमूव हो गए, ये रिमूव हो गए। इनमें से किसी एक जगह को कौन ऑक्युपाई कर लेगा? वन ऑफ द कैटायन वैकेंसी विल बी ऑक्युपाइड बाय स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आयंस। ओके, चार्ज भी बैलेंस हो गया, ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी आ गई, और हमारे पास जो स्ट्रोंशियम आयंस है उन्होंने सोडियम की वजह से जो 2 कैटायन वैकेंसीज बनी थी उनमें से किसी एक को ऑक्युपाई कर लिया। सो एक जो आपसे यहाँ पे जो डिस्कशन के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब NaCl को हम डोप करेंगे, आई विल राइट इट प्रॉपरली सो दैट कि आपको ईजी रहे ये। So when NaCl crystal is doped with strontium chloride, 2 Na positive ions are removed from NaCl crystal by 1 स्ट्रोंशियम आयन। ठीक है, सो एक स्ट्रोंशियम आयन के लिए 2 Na पॉजिटिव आयन रिमूव होंगे, और उसका रीजन बड़ा ऑब्वियस है, बिकॉज स्ट्रोंशियम इज डाइवेलेंट एंड सोडियम आयंस आर मोनोवैलेंट इन नेचर। और उनमें से किसी एक वैकेंसी को कौन ऑक्युपाई कर लेगा? स्ट्रोंशियम ऑक्युपाई कर लेगा। सो नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज कितनी बनेंगी? नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज for NaCl if it is doped with SrCl2, 1 cation vacancy। 2 नहीं, जनरली बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, स्टूडेंट्स गलती करते हैं, 2 नहीं बनेगी क्योंकि 2 में से एक को स्ट्रोंशियम आयन ऑक्युपाई कर लिया है, सो कैटायन वैकेंसी एक ही बची है। ओनली दिस इज द कैटायन वैकेंसी, जहां कैटायन प्रेजेंट था बट नाउ नो कैटायन इज प्रेजेंट, सो दिस इज कैटायन वैकेंसी। आप इसको कैटायन वैकेंसी नहीं कह सकते अब, क्योंकि यहाँ पे कैटायन Na पॉजिटिव की जगह पे स्ट्रोंशियम आयन अब आ चुका है, सो कैटायन वैकेंसी एक ही बची है। सो एक एग्जांपल मैं साथ में और बता रहा हूँ, अगर मैं NaCl क्रिस्टल को डोप कर देता हूँ AlCl3 के साथ, तो AlCl3 में कौन सी आयंस है? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। सो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं इसको डोप कर रहा हूँ तो पर Al3 पॉजिटिव आयन वी विल रिप्लेस 3 Na पॉजिटिव आयंस। उन 3 Na पॉजिटिव आयंस की वजह से 3 कैटायन वैकेंसीज बनेंगी, उनमें से एक को ऑक्युपाई कर लेगा एल्यूमिनियम, तो बचेंगी कितनी? 2 कैटायन वैकेंसीज। सो पर Al3 पॉजिटिव आयन इन NaCl क्रिस्टल देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 कैटायन वैकेंसीज, 2 कैटायन वैकेंसीज। सो रिमेंबर दिस थिंग। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि कितनी कैटायन वैकेंसीज बनी है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? व्हाट इज द चार्ज ऑन द डोपेंट जिसको हम ऐड कर रहे हैं एज इम्प्योरिटी, दैट इज आल्सो नोन एज डोपेंट, DOPANT।
PANT, डोपेंट। ओके, तो यहाँ पे डोपेंट कौन सा था NaCl क्रिस्टल के लिए? स्ट्रोंशियम आयन। दूसरा कौन सी हमने एग्जांपल स्टडी कर ली? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस के लिए। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। जो नेक्स्ट जो है दूसरी तरह की जो सॉलिड्स हैं, कोवलेंट सॉलिड्स, उनमें भी इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स हो सकते हैं। सो अब हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स इन कोवलेंट सॉलिड्स। तो डोपिंग किससे करेंगे हम कोवलेंट सॉलिड्स की? पहला जो केस है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच मॉइटीज के साथ हम डोपिंग इनकी करेंगे। एक मैं सिलिकॉन का क्रिस्टल यहाँ पे कंसीडर करूँ, बिकॉज सिलिकॉन इज वेरी वेल नोन कोवलेंट सॉलिड और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल है। यहाँ पे जो परफेक्ट अरेंजमेंट आपको दिख रही है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन रिच मॉइटीज कौन सी हैं? जो सिलिकॉन के कंपैरिजन में जिनके वैलेंस शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। सी केयरफुली, ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ग्रुप 14 एलिमेंट्स एंड ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 13 में कौन से हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ग्रुप 14 एलिमेंट्स है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ग्रुप 15 एलिमेंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। सो ये ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15 और के एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ग्रुप 13 में यू नो वेरी वेल NS2, NP3, सॉरी NP1, NS2, NP2 एंड NS2, NP3, यही है इनके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स। मींस इन एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो 3 है, इन एलिमेंट्स की वैलेंसी है 4, इन एलिमेंट्स की वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स है 5। सो अगर मैं सिलिकॉन का केस यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ, दिस इज सिलिकॉन, ये ग्रुप 14 का एलिमेंट है, इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 4 है। तो इलेक्ट्रॉन रिच मॉइटी के लिए कौन सी होगी? जिसमें इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। सो सी है, अगर मैं इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में, ये देखो यहाँ से एक सिलिकॉन मिस हो गया, 1 सिलिकॉन एटम इज मिसिंग, और इसकी जगह पे डोपेंट ऐड कर दिया जाए आर्सेनिक। नाउ आर्सेनिक इज पेंटावेलेंट, 5 है इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स, पेंटावेलेंट है, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे, 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड तो बन जाएंगे यहाँ पे। बट जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो क्या बच जाएगा? दैट विल बी लाइंग फ्री, वो फ्री पड़ा होगा। सो यहाँ पे जो पूरे मटेरियल की कंडक्टिविटी है वो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से बढ़ जाएगी। नाउ व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस फ्री इलेक्ट्रॉन? नेगेटिव चार्ज। तो सच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स दे आर कॉल्ड N टाइप सेमीकंडक्टर्स। N स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, N टाइप सेमीकंडक्टर्स। सो अगर सिलिकॉन जर्मेनियम को कभी भी डोप कर दिया जाए नाइट्रोजन वाले फैमिली के एलिमेंट से, ग्रुप 15 एलिमेंट से, वी विल गेट ऑलवेज N टाइप सेमीकंडक्टर्स। ओके, जो दूसरा केस है, लेट मी मेक सम स्पेस अवेलेबल हियर। ओके, जो सेकंड केस है, सी है, उसमें क्या होगा? जो डोपिंग की जाएगी दैट विल बी डन विद सम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉइटीज। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉइटीज कौन सी होंगी? जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जिस मटेरियल में डोप करना है उसके कंपैरिजन में कम है। जैसे मैं सिलिकॉन की एग्जांपल फिर से कंसीडर कर लेते हैं। लेट दिस इज द केस ऑफ सिलिकॉन, एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है सिलिकॉन। इसमें अब you can see here silicon is missing here and its position is occupied by some other atom like boron or aluminum, but boron can form only 3 bonds। तो ये बोरोन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3, 3 बॉन्ड बोरोन बना रहा है, बट एक यहाँ पे वेकेंट स्पेस रह गया। और ये जो वेकेंट स्पेस बचता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनाया जा सकता था, सॉरी बॉन्ड बनाया जा सकता था, दैट इज कॉल्ड होल, दैट इज कॉल्ड होल, और होल इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। ठीक है, सो सच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है डोपेंट ऐड किए जाएंगे, उनमें जो कंडक्टिविटी होगी दैट विल बी ड्यू टू होल्स, और होल्स क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज कंसिडर होंगे, दे आर P टाइप सेमीकंडक्टर्स। ओके, सो ये जो केस था दिस वाज फॉर impurity defects in case of ionic solids and in case of covalent solids। एक दो एग्जांपल्स मैं और आपसे डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। मान लो आई डोप्ड बोरोन डोप्ड विद सिलिकॉन। नो, बोरोन की डोपिंग सिलिकॉन से की जा रही है, बोरोन इज डोप्ड विद सिलिकॉन। नो, बोरोन का मेन क्रिस्टल होगा, ये ट्राइवेलेंट है, तो इसमें किसकी इंप्योरिटीज डाल दी है? सिलिकॉन की। नो, बोरोन तो 3 बॉन्ड बनाएगा, बट सिलिकॉन की कैपेसिटी है 4 बॉन्ड बनाने की। दैट मीन्स
सिलिकॉन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अगर वो सिलिकॉन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा। द कंक्लूजन इज लोअर ग्रुप एलिमेंट डोप्ड with higher group element, it will always form n type semiconductor। और इसका जो रिवर्स होगा उसमें कौन से बनेंगे, मींस हायर ग्रुप, यहां लिख देते हैं हायर ग्रुप डोप्ड विद लोअर ग्रुप एलिमेंट, वो बन जाएगा P type semiconductor। So this was the detailed discussion about the defects which are present in crystalline solids। So I hope you have enjoyed it और आपको जो कुछ डाउट्स थे आपके वो क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू।